इन सीएससी पोर्शन जाता सेंटर को है, बट सेंटर उतना का पूरा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को ही तो रेमिट करता है. So I mean, like, just put an assumption. We are in Gujarat and in Ahmedabad, and we have done a procurement from Baroda. So on that state, and now we are selling goods to Mumbai. So we are going to charge CST. So to pay CST, we will set off that. But CST would go to center. जिस स्टेट से ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हुआ हो रहा है ना, उसी स्टेट को सेंटर उतना अमाउंट रेमिट कर रहा है. सर इन एक्साइज आल्सो इट इज ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन. Excise. It also goes to the state. I mean, excise में से भी सेंट्रल गवर्नमेंट शेयरिंग करता है स्टेट के साथ. तो वो भी तो किस स्टेट में होगा जहाँ से प्रोडक्शन हुआ है. चलो वैट में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता क्योंकि वो तो स्टेट गवर्नमेंट का ही. Service tax, yes, it was consumption from earlier also. From starting it was consumption. Yes. So we'll get a refund of that. वो तो GST में वो एक्सपोर्ट के कारण है रादर देन प्रोडक्शन का हुआ, क्योंकि वो तो हम बाहर चार्ज करेंगे तो आपको रिबेट देंगे उतनी अमाउंट, वो तो वापस तो देना ही वाले. बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट दे आर गिविंग यू एन इंसेंटिव रादर देन वेयर द थिंग्स गेट कंज्यूम. अदरवाइज तो हम लोग चार्ज करो. सर एक्सपोर्ट में विदाउट ड्यूटी होता है तो विद ड्यूटी भी तो होता है. अगर विद ड्यूटी करे, ड्यूटी चार्ज कर ले कस्टमर से, देन गवर्नमेंट गिव्स अ रिबेट ऑफ दैट अमाउंट रादर देन गिविंग अ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट बिकॉज वी विल यूज द. Yes. Yes. No, sir, it won't remain same. The scope has increased also. And state would not even get the same revenue. State would get higher revenue because GST compensation law very clearly says 14% extra. Whatever is their 2016-17 revenue plus 14%, if they will not get, then they will be compensated by charging cesses. अपनी जेब से कौन देता है सर. आप सोचिए सर, कंपनसेशन ना हो ना तो भी आप लॉजिकली सोचिए जीएसटी का जो प्रपोर्शन है, मे बी आई एम गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड आई एम आंसरिंग. हम लोग ये अज्यूम करें कि सीजीएसटी 50% है, एसजीएसटी 50%. सो 50% रेवेन्यू वुड गो टू स्टेट एंड 50% वुड गो टू सेंटर. सेंटर का जो 50% है ना, उसमें से भी 41% अगेन इट वुड गो टू स्टेट. सो पूरा का पूरा तो स्टेट को जा रहा है. अब जो 9, 10, 20% बचा है उसमें से भी कंपनसेशन तो वो नहीं देगा सेंटर, क्योंकि वो उनको भी अपनी स्कीम चलानी. So for that we are going to charge an extra tax called cess. And it is very clearly mentioned in GST compensation law that 2016-17 revenue plus 14% is assumed as you will earn extra in GST. If you won't earn, we will compensate that. और वो भी बोला है कि existing taxes में कौन से taxes गिनने के for revenue of the state government. All is divided in GST compensation. Okay, yes please. So I believe everybody is clear with this component. Okay, so origin based taxation to destination based taxation. And one more thing is, one issue was raised in Parliament regarding this. It's very clear. One of the smartest answer given by the government of India for that is when BJP government initially announced that the state government would compensate, central government would compensate the states in case of loss of revenue. So someone in media raised this issue saying that this guarantee is given by an existing government. What is the surety it will remain there forever? Rather for 5 years. After 5 years, if this, जैसे 2019 बीच में आता इलेक्शन में, what if this government is not going to be there? कोई और remove कर दे तो states will be there at a loss. I hope you understand because law तो sector में ही पास होगा. So over there, the answer was given like this, that this is not decided by the ruling party or the government. It was decided by the GST Council. That compensation will be given for next 5 years. And who is there in GST Council? Every state representative, rather every party representative. And if everybody has given the unanimous approval, then I don't think so that any damn party who is going to be there in center in 2019 will change it if they have given unanimous approval.
So it was given as an answer because ये तो मीडिया में कुछ भी ले आएगा. So it was given as an answer. So I don't think so there would be a loss of revenue. And what if after 5 years? So that is where the answer was given as nobody knows what will be there after. So that would be decided. The council will take the decision at a later stage of inquiry. Again, maybe unanimous approval for next 5 years if required. So this is an existing point which we are clear with. I believe everybody is clear with the origin-based to destination-based tax system. The third point is flexibility. ये एक बहुत strong point है. Flexibility almost दिया ही नहीं है precisely. भले हर एक स्टेट को SGST का एक्ट पास करने का परमिशन दिया है, बट प्रिसाइसली उनको आधे से ज्यादा बांध के रखा है कि आप इससे ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते. ये मैं बोल रहा हूँ आधे से ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते. हाँ, कुछ चीजों में परमिशन है. अगर किसी को भी ये लगता है कि सेंटर और स्टेट का पावर, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऑलवेज सेम रहेगा, तो वो एक असम्पशन है. हम लोग ये बोलते हैं कि भाई 28% is the maximum rate proposed. I think everybody is aware. 28% is the maximum rate proposed. 28% में से 14% would go to center. So अगर आपने CGST एक्ट देखा हो ना, तो उसमें ये इनिशियली जो नवंबर में ड्राफ्ट हुआ था उसमें ये बोला था कि मैक्सिमम CGST can be charged by center as 14%, which I believe recently has been revised to 20%. But ignore that 20%. कि नहीं से अगर मैं 14% पे फोकस करूं तो मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है? 14, 28. ये assumption है हमारा, but actually ऐसा नहीं है. स्टेट को पावर दिया गया है. A small window is given. You can make 1 or 2% plus minus payments. So you may find in some states as SGST rate not 14, 15, maybe even 16. They are given with power that they may make a change. So ये हमारा एक normal assumption है कि CGST and SGST is going to be equal. But state अपनी requirement के हिसाब से change कर सकता है. The power is with them. So total will not be same. If center would say we want to charge 14% as CGST, and if state would say we want to charge 16% as SGST, then it would be 30%. 1 or 2% plus minus is allowed to state. A small window is given to states under SGST. तो उससे ज़्यादा power नहीं. वो अपने requirement के हिसाब से उससे ज़्यादा change कर सकते. They can make a small change. 1 or 2% is allowed. That's okay. They can do the real power. They have any power because SGST तो वही पास है. तो अपना रेट क्या रखना वो तो वही डिसाइड कर सकते हैं. 1 or 2% is allowed. Power is, but as I said, substantially the power has been reduced. They cannot do anything. Substantially the power has been reduced. Only 1 or 2%. I mean, in that case, I tell you what will happen is IGST and CGST, SGST rate would not match. Because IGST तो 2080 होगा, CGST 14 हो गया, SGST 16 हो गया, but IGST would remain as 28. तो ऐसा हो सकता है इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई में रेट अलग. Maybe a worse possibility. I'm not sure which state would do what. But अपने वहाँ पे ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेट टैक्सेस चेंज करते हैं. Power is with the state government. They can make small windows, 1 or 2%. But that is why I've used the word as the flexibility to states to modify law is likely to reduce substantially. Very less power, not everything. Next is seamless credit regime. We have discussed that credit regime. Every tax can be set off against everything, except I believe everybody is remembering that CGST cannot be set off against SGST. अच्छा, क्या ऐसा फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी आएगा जहाँ CGST को SGST के सामने सेट ऑफ कर? Any possibility where you think that you need to set off CGST against SGST or the other way? I doubt on that. मुझे भी नहीं मिल रहा है ऐसा, but I doubt on that. कैसी कोई possibility नहीं आएगी, क्योंकि CGST और SGST हर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में लगने वाला है. So why there is a need to set off CGST and SGST against each other? उसमें फंजिबिलिटी नहीं दिया है, but वो लॉजिकल भी है, देने की कोई जरूरत ही, is no need for that. So proposed seamless credit regime is what we understand. Next one is strong focus on compliance. Now, if all of us are chartered accountant, then this is where our area comes. Because I believe everybody has heard
that there are going to be so many returns. I mean, 3 monthly returns, so 12 months, so 36 return plus 1 annual return. So there has to be 37 returns. So आपको per return वाले, obviously we are charging per return. So if there are 37 returns, so I believe everybody understand what is going to be there as a part of the revenue on that case. But very strong compliance. For that, I believe everybody is aware that the job is given to Infosys, and they have already designed a network called as GSTN, Goods and Service Tax Network. So which is one of the fastest growing, best. Just logically सोचे, जो आप में से वैट का काम कर रहे हैं, उनको पता है कि जब कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके हम लोग सब लोग लास्ट डे पे रिटर्न फाइल करने बैठते हैं तो क्या होता है, आधे टाइम तो साइट क्रैश ही हो जाता है. 4 बार रिटर्न अपलोड करो तो 1 बार परफेक्ट होता है. दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन. तो लोग रात को 2 बजे करते हैं फिर, बिकॉज वही टाइम पे सब अवेलेबल होता है. सो बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज देयर, एवरीबडी इज फेसिंग दैट. अब यहाँ तो हर स्टेट वाला बंदा एक साथ आएगा. So I don't know what sort of network they are designing. They have given a guarantee that we will give you an extraordinary infrastructure, which will not create a chaos or will not create a problem. But logically speaking, is going to be a big issue because हर state का हर बंदा एक ही टाइम पे रिटर्न फाइल करने बैठा है almost last day. और वो जब रिटर्न फाइल करने बैठा है तो मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जीएसटी में तो आपको हर ट्रांजैक्शन अपलोड करना है. तो ह्यूज ट्रैफिक इज गोइंग टू बी देयर. पता नहीं उन्हें क्या बैंडविड्थ और क्या सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा कि क्रैश ना हो. एक ऐसा कुछ सर्वे के हिसाब से बोला था कि आईआरसीटीसी से तो 10 टाइम्स फास्टर चाहिए, तो ही हम लोग मैचअप कर पाएंगे, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं. बिकॉज ये वर्क लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा. और अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है कि फाइल उन्होंने साइज रख दिया कि इतने से ज्यादा केबी नहीं चलेगा. वो तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबको प्रॉब्लम फेस हुआ है कि इतने केबी से ज्यादा नहीं चलेगा. हमारे अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट आईटी वालों को पकड़ रहे हैं कि भाई फाइल की साइज कैसे कम करें, बिकॉज वी हैव दैट इश्यू. क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है इसका. सो ये आने ही वाला है. जिस दिन वेबसाइट पे आपको रिटर्न अपलोड करने का जो फर्स्ट आएगा 1 जुलाई को, जब से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो मान रहे कि जुलाई के बाद जब अगस्त में रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट होगा, उस टाइम पे ये स्टैंडर्ड इश्यू आने वाला है. और मैं पर्सनल लेवल पे ऐसा मानता हूँ कि पहली ड्यू डेट तो एक्सटेंड ही होगी. ये होनी ही चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कंप्लायंस इज देयर. Then widening of the tax base. Now this is again जो हम लोग बोल रहे थे कि revenue increase होगा या नहीं. There will be a widening of the tax base. Reason is आधे से ज़्यादा exemptions remove हो चुके हैं. I mean exemptions ही prima facie remove कर दिए, कुछ ही रखे, a very small portion. जबकि existing service tax में आपको पता है exemptions है, वो negative list आता है, mega exemption आता है, उसके अलावा बहुत सारे notifications है जिसके through exemptions है. Same way we understand state government gives exemptions on a lot of goods. Center government ने excise में बहुत सारे goods को exemption दे दिया. I mean पूरा का पूरा textile sector exempt है. तो ऐसे कितने sectors हैं जिसके ऊपर exemption है? Under GST, all of them are going to be part of the system. So when I say all of them are going to be part of the system, so can I say widening हुआ है tax system का? Obviously scope is going to increase. Those who have seen the phase of sales tax getting converted into VAT have seen also the same thing. I'll tell you, those who are aware, जिन्होंने sales tax से VAT का system देखा हो, we have certain senior members over here, so they have seen it. Sales tax से जब VAT हुआ था ना, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ये बोल रहा था कि there would be a higher revenue growth, and it was there. Why it was there? Logically speaking, sales tax was earlier applicable only on luxurious goods, while when VAT came in, it was almost applicable on all sort of commodities. So because the scope was increased, भले डबल टैक्सेशन कम हुआ था तो वैसे तो टैक्सेस कम हो रहे थे, but because the scope was increased, it has resulted into higher revenue growth for the states. Same thing we are as of now happen. I mean, is going to happen because एक बार जो डबल टैक्सेशन निकलेगा ना तो प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे logically speaking. But then also they say higher revenue growth. Why? तो क्या widening of the tax system. और आप logically सोचो तो सही, स्टेट में तो उन्होंने वैट वालों को तो बहुत अच्छा पोजीशन दी. क्यों? तो क्या वैट कितना था? What is basic exemption in VAT? I mean, Gujarat 5 lakhs. It has increased to 20 lakhs. It seems a good bit. Service tax exemption, it has increased to
20 lakh. Again, it seems as a good picture, but the real picture is in excise. And it was 1.5 crore and now 20 lakhs. So, I mean, center is also going to get a good revenue out of that. Just try and understand. 20 लाख से 1.5 करोड़ तक सेंटर को कुछ मिलता ही नहीं था. I mean, 5 लाख से 1.5 करोड़ तक. गुड्स पे कोई टैक्स ही नहीं थे उनके. अभी सीधा 10 लाख तक उनका रेवेन्यू आ गया है. तो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर इंक्रीज इन रेवेन्यू. So I don't think so that they need to worry to compensate any state. So revenue. So this is widening of the tax system. दो रीजन से वाइडनिंग हो रहा है. एक लॉजिकल पॉइंट है कि एग्जम्पशंस विड्रॉ हो रहे हैं. See, GST का one of the first point is they have almost eliminated all exemptions. जितने एग्जम्पशंस थे ना उन सबको रिफंड में कन्वर्ट कर दिया. मैंने पहले टैक्स भरो बाद में रिफंड ले जाओ, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. उसका रीजन क्या? तो कि टैक्स भरोगे तो आगे क्रेडिट चालू रहेगा. सीमलेस क्रेडिट. अगर आप टैक्सी चार्ज नहीं करोगे तो क्रेडिट सिस्टम टूटेगा आगे, which is creating a problem. So government say, okay, if you are manufacturing something which is of prime importance, we will allow you, but will not allow you by way of exemption. We will allow you by way of refund. आपको लॉस नहीं करवाएंगे क्योंकि आप एक रेलेवेंट चीज बना रहे हो, तो इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट. सो गवर्नमेंट हैज रिमूव द स्कोप ऑफ रिफंड प्राइम ऑफिस. कुछ ही एक शेड्यूल है आगे, वी विल कवर अप दैट शेड्यूल 3 करके, जिसमें नेगेटिव लिस्ट है कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स के रिलेटेड, जैसे कि फ्यूनरल ब्यूरल अभी भी उधर ही. ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आज भी जीएसटी में भी कोई टैक्स नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट होगा. बट अदर देन दैट बाकी हर चीज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है. हर सर्विस के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है. हाँ, अगर आप एलिजिबल हो ना तो हम आपको रिफंड दे दें, बाकी हम एग्जम्पशन नहीं अलाउ. सो वाइडनिंग एज दैट इज फॉर श्योर. The last one, which I believe is my favorite point, is as of now, मेरे को याद है a few years ago when I was studying in my classroom, our faculty, जो नवकार के स्टूडेंट हैं, फलक सर ने एक बार ऐसा बोला था that इंडिया में लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से बिजनेस नहीं करते हैं, टैक्स अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से बिजनेस करते हैं. And which is more or less correct. The example which he gave on that day, which I am again sharing, then I'll give you another example which is practically related to indirect tax. What is the logic of going and setting up a factory in northeastern states? सही एकदम. I don't think so any businessman is interested in the development of the northeastern state. What is the logic of setting up? Oh, I don't think so that they have a huge market over there. इतना बड़ा मार्केट है. No. Simple logic of setting up a factory in northeastern state was, exemptions under income tax as well as under excise as well as under VAT. So now people were not doing business as per the business opportunity, they were doing business as per the tax opportunity. Now I'll share you another example which is completely related to indirect taxes. CST का issue. बहुत सारे लोगों को पता है सीएसटी का इशू. ये सीएसटी बचाने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. बड़ी कंपनी के एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं. आप एचयूएल ले लो, आईटीसी ले लो, हिटाची ले लो. दिस एग्जांपल आई फ्रेम बेस्ड ऑन माय वन ऑफ ट्रेनिंग विद द हिटाची को मैं उनकी कंपनी में मैं ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा था, तो वहां से डिस्कशन में से मुझे ये एग्जांपल मिला. बेसिकली व्हाट इज द पॉइंट. हिटाची is having a manufacturing plant in India only in one state, and that is Gujarat. But they have opened their branch offices or their state offices in almost every state because they have a market in each state. उसके लिए तो वो एजेंट भी अपॉइंट कर सकते just to save this 2% of the CST. I'll tell you why. थोड़ा ध्यान से डेप्थ में जा रहा हूँ. मान लो कि हम गुजरात में गुड्स बनाए और गुजरात में ही बेचे. आई एम सेइंग एसी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड टू रिटेलर टू एंड यूजर. सो मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर टू एंड यूजर. ठीक है, पूरी चेन की मैं बात कर रहा हूँ. मैन्युफैक्चरर गुड्स बना के जब डिस्ट्रीब्यूटर को ऑफर करेगा, गुजरात में गुड्स बने और गुजरात में ऑफर करेगा,
या गुजरात में गुड्स बने या आउटसाइड गुजरात ऑफर करेगा? कि नहीं से एक्साइज तो कहीं पे भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो तो भूल ही जाए हम लोग। बट अगर गुजरात में गुड्स बना के गुजरात में ऑफर करेगा तो वैट का क्रेडिट, वैट मिलेगा ना डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि उसको भी तो आगे वैट पे करना है। अच्छा, गुजरात में गुड्स बना के आप आउटसाइड गुजरात भेजो, यू विल चार्ज वैट और यू विल चार्ज सीएसटी, जिसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला आगे किसी। ये क्लियर है? अब होगा क्या, जस्ट पुट एन अजम्पशन, 100 रुपए का प्रोडक्ट का कॉस्ट है, एक्साइज को इग्नोर करो, वैट और सीएसटी की बात करते हैं। 4% वैट है, 2% सीएसटी। 4% वैट चार्ज करेंगे तो 104 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को दिया गुजरात के, वो 4 रुपए का क्रेडिट ले लेगा, 100 रुपया उसका कॉस्ट हुआ, अज्यूम करो उसका मार्जिन 20%, सो दैट मींस 120 पे वो 4% चार्ज करेगा, कितना होगा 4.8, अप्रोक्सीमेटली 4.8। 4.8 उसको पे करना है, 4 रुपया क्रेडिट है, वो सेट ऑफ कर देगा, 0.8 अपनी जेब से वैट कस्टमर से लेके भर देगा। तो अगर यही बंदा जो गुजरात वाला है, जो गुजरात में सप्लाई कर रहा है, तो ये होगा। अगर वही चीज वो महाराष्ट्र में सप्लाई करे तो वो वैट चार्ज करेगा कि सीएसटी? एंड इन महाराष्ट्र द पर्सन हु इज डिस्ट्रीब्यूटर, इज ही गोना गेट क्रेडिट ऑफ सीएसटी? So he is not going to get credit of CST. So in his case, the price would be 102. And again, the distributor is having 20%. So मैं तो 100 का ही 20% उसे दे रहा हूँ. So that means he has to sell a product at 120. So जो गुजरात का डिस्ट्रीब्यूटर 20 रुपया कमाता है, महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर उसी जगह पे 18 कमाता है. I believe everybody is following. इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हिटाची जैसी कंपनी क्या करती है, तो हर स्टेट में अपनी ऑफिसेस खोलती है, ब्रांच खोलती है, और फिर आपको पता है इंटरस्टेट ट्रांसफर। एंड व्हेन देयर इज इंटरस्टेट ट्रांसफर, इज इट टैक्स और नो टैक्स? एफ फॉर्म इश्यू करो, विदाउट टैक्स ट्रांसफर कर दो। अब गुड्स कहाँ गए? महाराष्ट्र में पहुंच गए। अब महाराष्ट्र में जो ब्रांच है वो वहां के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, तो इज इट सीएसटी और वैट? और वो 100 रुपए का प्रोडक्ट जब आगे 120 में बेचेगा, उसको 4 रुपया आमने सामने सेट ऑफ करने अलाउड हो जाएगा, तो उसका मार्जिन अभी भी कितना रहेगा? 20। ये समझ में आता है? ये 2% सीएसटी का जो अमाउंट है ना, वो वॉल्यूम में अगर मल्टीप्लाई करे ना, तो उसका जितना अमाउंट होता है उससे कम अमाउंट में हिटाची ने हर स्टेट में ऑफिस खड़ी कर दी, just to save this 2%. I believe everybody understands this. Just to save this 2%, क्यों? तो ये 2% in volume, ये हिटाची HUL जो समझो 10-10 रुपए की प्रोडक्ट बेचता है, बट वॉल्यूम इतना बड़ा है कि करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ दिस it comes into this 2%. तो वो हर स्टेट में ऑफिस खड़ी कर रहे हैं just because they want to save this 2%. इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट केम अप, कोई और ऑप्शन नहीं था, बट इसको रिजॉल्व करने के लिए ये जीएसटी बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एवरीथिंग। सो नाउ आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड ऑफिस इन एवरी स्टेट ऑफ कंपनीज लाइक दिस। अब वो कहाँ ऑफिस खड़ी करेंगे? क्योंकि जहाँ रिक्वायरमेंट होगा, एक्चुअली जहाँ उनको मार्केट पोटेंशियल लगेगा। सो एज ऑफ नाउ द बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस आर नॉट टेकिंग are not done as per the business opportunity, rather done as per more tax opportunities. But in future, we are just as of now assuming that it would be more based on business opportunities rather than tax. I believe everybody is clear with the issue which I have. Yes, sir. Yes. 2% रिवर्स करना पड़ेगा, बट सर मैं अपना 2% रिवर्स करूं और उसके सामने मैं ये सोचूं कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का 2% कम हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो ही विल वर्क फॉर मी इफ ही इज गेटिंग अ लोकल मैन्युफैक्चरर जो उसको ये 2% भी नहीं दे रहा। सर मैं गुजरात में बनाता हूँ, एक और कोई एसी वाली कंपनी है जो वहां पे बना रही, तो वो जो एसी वाली कंपनी है जो वहां पे बना रही, वो उसको पूरा का पूरा 20% ऑफर कर रहा है, जबकि मैं उसको 18% ऑफर कर रहा हूँ, तो वो मेरी प्रोडक्ट को क्यों प्रमोट करे? आप सोच रहे हैं कि मेरा 2% गया, वो मैं मानता हूं, बट मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर तो क्या सोचेगा कि गुजरात से जो बेच रहा है वो मुझे 18% ऑफर कर रहा है, महाराष्ट्र से जो बेच रहा है वो मुझे 20% ऑफर कर रहा है, तो whom I would promote? अच्छा आप बोलो तो एक काम करो, आप उसको 20% दे दो, तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा।
अगर प्रोडक्ट का 102 पे 20% गिनना पड़ेगा, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो फिर महाराष्ट्र से वैसे भी आप डिस्करेज हो जाओगे। क्यों? तो कि वहां वाला 100 प्लस 20 गिन रहा है, हम लोग 102 प्लस 20 गिन रहे हैं। 2% तो जाने ही वाला है। बट डिस्ट्रीब्यूटर का पॉइंट सोचो, वो मेरी प्रोडक्ट बेचेगा कि महाराष्ट्र वाले की प्रोडक्ट बेचेगा? अगर वो महाराष्ट्र में है तो वो वहीं भी प्रोडक्ट बेचेगा। क्यों? तो कि वहां 20% मिल रहा है और मेरा 18%। सो कंपनीज को इस रीजन से ऐसे 50 ऑफिस खोलने पड़ते, हर स्टेट में जाना पड़ता था, हर सेंटर में जाना पड़ता था। सो वो अब रिजॉल्व हो। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द पॉइंट। यस सर, प्लीज। The place of supply is there to define. The place of supply is there to define. We will definitely cover that in place of supply. But still, as you have asked, there is a concept which says that एक होता है सर, मैं यहाँ से सब कुछ प्लान करके कोई स्टेट में जाऊँ एंड वहाँ पे सर्विस दूँ. Like as a chartered accountant, I go to Mumbai and do an audit of someone. So all arrangement and everything is done well in advance, and I'll just go and give the service. It is considered as an interstate service, and on which IGST would be charged. But another option is I go directly in a state and then try and find an opportunity for few days. Best example, आम की सीजन है सर. महाराष्ट्र में जो आम वाले हैं वो अगर गुजरात में आके अपनी वेंडर में, अभी आपने देखा होगा सीजन में वो ओपन लैंड पे दुकान लग जाती है, सीजनल शॉप, जैसे कि ये पटाखे वाले हैं. So वो सब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में आएगा. There are 2 points for this. One is कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अप्रोच and another is IGST. अगर कोई महाराष्ट्र वाला यहाँ पे आके बिजनेस करता है या हम लोग महाराष्ट्र जाके बिजनेस करते हैं तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी, या तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में आएगा या तो वो IGST में फॉलो होगा. वो डिफाइन करने के लिए 3 लाइन रखा हुआ है. वी विल कवर अप दैट अंडर प्लेस ऑफ सप्लाई. बट स्मॉल एग्जांपल मैंने आपको दिया. एक होता है कि मैं गुजरात से एग्रीमेंट करके जाऊं कि मैं आपके वहां पे सर्विस देने आ रहा हूं, अब मैं खाली जाके सर्व करूंगा. इट विल बी कॉल्ड एज इंटरस्टेट. उसके लिए वर्ड्स है, प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज सप्लाइड एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. वी विल कवर अप दैट. और दूसरा होता है कि कंसीडरिंग एन अपॉर्चुनिटी, मैं उस मार्केट में जा रहा हूँ और फिर मैं वहां पे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करूंगा, जिसके लिए मैंने आपको आम वाला या उसका. तो then नहीं, but so sir, that is what I'm saying. Was it well in plan? ये हो रहा है. So then in that case it would be IGST only. But there is another point which we need to understand. एक होता है कि मैं IIM सर्विस देने आया and during that course someone has heard my lecture and some company is inviting me for a transaction. Then we will consider it a casual taxable person. IGST, sir, if agreement and everything is done from that side and you are coming to Gujarat from Maharashtra for providing service, it's a matter of IGST. Casual taxable person होगा ना तो sir CGST SGST issue है. We will cover up that in place of supply. We will focus on that. Yes, moving ahead with this now. So these are the yes, oh, sorry. E-commerce में तो बहुत clear defined है कि though vendors are selling, everything will be discharged by e-commerce operator. So Amazon will discharge the liability rather than who is selling through Amazon. They have to collect the tax and pay. We will discuss. E-commerce compulsory, उनके लिए तो रूल ही बना दिया. नहीं तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा कि मैं बेचता हूँ अहमदाबाद में से, कस्टमर है सूरत में से डिलीवरी करने का बोल रहा है, महाराष्ट्र में ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है यूएस में. ये तो बहुत बड़ा इश्यू होगा. सो वी विल कवर अप दैट. ई कॉमर्स में तो डिफाइन ही कर दिया है कि कौन बेचता है ना, उससे हमको कोई लेना देना ही नहीं. हमारे लिए तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही है, हम तो उससे ही टैक्स. वी विल कवर अप दैट इश्यू. उसको साइड में. नाउ सो व्हेन आई से दिस आर द फंडामेंटल चेंजेस, origin to destination, as I have already explained. These are the 5 rates. I believe everybody is aware that they are planning is 0, 5, 12, 18 and 28 which is there. But अभी जो revised GST आया उसमें 40% का कैप रखा हुआ है. So future में कभी भी कुछ uncertainties हो जिसके कारण 40% भी किया जा सकता है, they have kept a higher limit.
बाकी जो अप्रूव भी हो गया आपको, so 2020 is mentioned in CGST and also mentioned in SGST. But these are the 5 possible rates and still not sure by what date they will confirm that कौन सी product या कौन सी services के ऊपर कौन सा tax आएगा. But just a day ago, statement from Hasmukh Adia sir came in, which says that services पे तो 15 का 18 होने का chances है. So goods पे अलग अलग rates के chances है. I don't think so service पे अलग अलग rate होगा. It would be a flat 18%. गुड्स पे अलग अलग रेट्स होने के चांसेस है. उसमें वो कौन से गुड्स पे क्या रखेंगे, बाकी क्लियर स्टेटमेंट है. उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि सर्विसेज में तो 18% होने ही, गुड्स पे अलग अलग रेट्स होने के चांसेस है. 0, 5, 12, 18 एंड 28. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी है जिसपे सेसेस लगेंगे. वही तो जीएसटी कंपनसेशन लॉ का मेन पॉइंट, कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाएगा जीएसटी कंपनसेशन लॉ में. 28% is what we say as a higher limit, but actually speaking 28% plus cess, not on all products, only on selected products like pan masala, tobacco, gutta, cigarette, on that line, aerated drink also. उन सब के ऊपर extra taxes charge करेंगे in the name of cesses. Now that entire amount would be used for what? Okay, in case of loss of revenue to the respective state government, it would be given as a compensation. So ये जो सेसेस चार्ज होंगे, इनफैक्ट अगर ये सेस चार्ज ना हो ना तो आईटीसी के प्राइस कल से डबल हो जाए. सर सिगरेट पे अभी 55-56% टैक्स है. सारे टैक्सेस मिला दो और आप बोलोगे कि हाईएस्ट टैक्स 28. सो बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज आईटीसी. कल ही उसके प्राइस डबल हो जाए, सीधा प्रॉफिट. आई मीन जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाफ द टैक्स. सो वो ना हो उसके लिए ये सेसेस का प्रोविजन है. ये जो भी पोर्शन है वो यूज किया जाएगा. एंड अगेन कोई बोले कि सर 5 साल के बाद ये सेस का क्या होगा, तो दैट इज, ये सेस चार्ज करने का पावर आईजीएसटी एक्ट में है ही नहीं. वो पावर जीएसटी कंपनसेशन लॉ से ही आता है जो 5 साल के लिए ही है. तो 5 साल के बाद अगर मैं मानता हूं कि अगर कंपनसेशन कंटिन्यू किया जाएगा तो प्रोबेबली ये सेस भी कंटिन्यू किया जाएगा. उसके बाद क्या इज अगेन अ डाउटफुल थिंग, क्योंकि अगर मान लो कि कंपनसेशन देने की जरूरत ना पड़ी तो क्या गवर्नमेंट सेस को कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, दैट इज स्टिल अ डिबेटेबल इश्यू ऑन व्हिच जीएसटी काउंसिल हैज नॉट सेड एनीथिंग. सो मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑन दिस. So these are the 5 possible rates which we need to understand. And I believe I've said that powers as state के पास, they can make a small change 1 or 2%. That is also given. This power is with them. Now this is GST and network is what we understand. Now I'm just starting basic introduction of what is existing charging system में क्या point है. Then sometime we'll take a break, a tea break or kind of thing, because I understand यहाँ पे जितने लोग हैं वो used to नहीं है अब इसके, बहुत टाइम पहले छोड़ दिया है लोगों ने. मतलब I understand, we will take a break, just खाली एक basic थोड़ा introduction हो जाए उसके बाद. When I say charging section, power is with section 9, वो change हो गया. पहले कुछ और section में power था, अभी ये revise हुआ, सारे sections change हो गए, schedules change हो गए, everything has changed. Section 9 में जो power है, I have already conveyed that the maximum rate would be 20%. सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है 20%. बट गवर्नमेंट ने प्राइमा फेसी क्या बोला है, हम लोग हाईएस्ट क्या चार्ज देंगे 28. बट दे हैव केप्ट द पावर के दे कैन टेक इट अप टू 20%. सो नॉट एक्सीडिंग 20% इज द फर्स्ट थिंग. अगेन अल्कोहलिक लीकर हैज बीन केप्ट आउट, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी आउट ही है. आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर, एक्साइज नहीं लगाया जाता है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन. और अदर एक्साइज लगाया जाता है बट सेंट्रल लेवी में नहीं आता, इट इज पार्ट ऑफ स्टेट लेवी एंड दैट वुड कंटिन्यू इन जीएसटी आल्सो. For petrol and something, I mean, as of now there is a separate tax system. So GST 1st July से जब आएगा तो उसमें भी अभी same system ही continue रहेगा. But government has kept a provision saying that in future we will also subsume that under part of the GST. As of now, no. We will come up with some date in future when that petroleum, I mean, जो भी taxes है जो petroleum पे आज charge हो रहा है, that will also get subsumed under. There would be some future date when it would come. Next is the reverse charge mechanism. Now, when I say reverse charge mechanism, जो service tax में आज apply हो रहा है, for that they will specify.
certain goods, certain services on which the reverse charge mechanism should apply, and they will specify that, and accordingly the taxes would be charged on that. So that also would be specified. एक बहुत relevant issue है जो वैट, जीएसटी और ये रिवर्स चार्ज को मर्ज कर रहा है. देखो, अब तक आई बिलीव जिन लोगों को भी पता है, एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में ऐसा है, सर्विस टैक्स में, कि अगर आप कुछ गुड्स एंड सॉरी आप कुछ सर्विसेज प्रोक्योर करो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीज दिया हुआ है कि इतनी ही सर्विसेज है जिस पे आरसीएम अप्लाई होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा, बाकी कोई जगह पे अप्लाई नहीं, तो वो पॉइंट तो है ही ऊपर वाला कि कुछ गुड्स और सर्विसेज दिए जाएंगे जिसमें आरसीएम अप्लाई होगा. बट एक और पॉइंट ड्राफ्ट हुआ है विच सेज कि कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विसेज में भी आरसीएम अप्लाई हो सकता है, provided there is a condition, provided you are following composition tax system. composition rule वैट में है, सबको बताया ना. composition वो कितना, 5 लाख से 50 लाख के बीच में. अगर 5 लाख 50 लाख के बीच में हो आप तो एक फिक्स अमाउंट पे कर दो परसेंटेज में. अगर आप उतना अमाउंट पे कर देते हो तो आपका एक्चुअल लायबिलिटी क्या वो देखने की जरूरत नहीं. लमसम टैक्स, व्हाट वी से इन लैंग्वेज, कंपोजिशन स्कीम है. एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में वैट में कंपोजिशन स्कीम अलाउड है कि आप इतना फिक्स परसेंटेज पे कर दो. उस सिस्टम को मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. जीएसटी में भी 20 से 50 लाख के बीच में कंपोजिशन स्कीम है. तो अगर मान लो कि मैं एक ट्रेडर हूं जो 30 लाख का टर्नओवर जनरेट कर रहा हूं और ट्रेडर के लिए कंपोजिशन स्कीम का रेट रखा है 0.5%, तो 30 लाख का 0.5% मैं पे कर दूं तो मेरी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई. यहां तक सबको क्लियर है? अब मान लो कि एज अ ट्रेडर मैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर कर रहा हूं, मैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर कर रहा हूं जिस पे आरसीएम अप्लाई होता है. अगर मैं 1 मिनट उसको इग्नोर करूं, मान लो कि मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज पे करना है अंडर कंपोजिशन स्कीम, बराबर. बट मैंने जो प्रोक्योर किया होगा उसमें मेरे जो सप्लायर होंगे उन्होंने तो नॉर्मल टैक्स ही चार्ज किया होगा ना, वो थोड़ी कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर रहे हैं. अच्छा, कंपोजिशन स्कीम का कंडीशन क्या है? ना मुझे क्रेडिट मिलेगा ना मैं क्रेडिट आगे दे सकता हूं. अलग से कलेक्ट ही नहीं करना है, बिल में आप टैक्स लगा ही नहीं सकते अलग से. नॉट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, and whatever you have collected, I mean whatever you have paid, you are not going to get the credit. तो जीएसटी में भी सेम है, ना आपको क्रेडिट लेने का ना आपको देने का, कुछ नहीं. यू आर आउट ऑफ द क्रेडिट सिस्टम. तो अगर कोई सप्लायर है जो मेरे पे टैक्स चार्ज कर रहा है तो कहना ही कि मुझे उसका कोई क्रेडिट मिलने वाला. अच्छा, मैं ये अजम्पशन लूं कि कोई सप्लायर मुझे ऐसे गुड्स दे रहा है जिस पे आरसीएम है, तो कहना ही वो टैक्स चार्ज करेगा कि मैं करूं? रिवर्स चार्जेस. प्रोवाइडर टैक्स भरेगा कि रिसीवर? सप्लायर और रिसिपिएंट टैक्स भरेगा ना. कुछ ऐसे गुड्स की बात कर रहा हूं जिसपे रिवर्स चार्ज है, तो रिवर्स चार्ज है तो कौन पे करेगा? सप्लायर और रिसिपिएंट. तो रिसिपिएंट खुद टैक्स भरेगा. अच्छा, मैं कंपोजिशन स्कीम डीलर हूं तो मेरे को अपने आउटपुट लायबिलिटी पे 0.5% या 1% या 2.5% पे करना है. अपनी लायबिलिटी, ये मैं अपनी लायबिलिटी पे कर रहा हूं कि किसी और की लायबिलिटी पे कर रहा हूं? टैक्स उसकी जगह पे मैं पे कर रहा हूं. आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग दिस. सो उसमें तो मुझे एक्चुअल रेट ही पे करना पड़ेगा. भाई समझ में आता है? अगर यहां तक आया तो एक स्टेप आगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं. यहां तक सबको क्लियर है? इन कंपोजिशन स्कीम मैं अपनी लायबिलिटी तो डिस्चार्ज कर ही दूंगा, बट मैंने जो इनपुट प्रोक्योर किया है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई हो रहा है तो मुझे उस पे 0.5 या 1 या 2.5 नहीं पे करना है, मुझे तो एक्चुअल टैक्स ही पे करना है जो उस गुड्स या उस सर्विस का रेट. अब एक और स्टेप आगे जा रहा हूं. लेट्स पुट इट दिस वे, मैं ऐसे गुड्स की बात ही नहीं कर रहा हूं जिसपे रिवर्स चार्ज हो. तो अगर मैं ऐसे गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं जिसपे रिवर्स चार्ज हो तो उस सिचुएशन में तो मैं ये सिस्टम में ही नहीं आऊंगा. ऐसे गुड्स की बात ही नहीं कर रहा हूं जो रिवर्स चार्ज है. दैट मींस टैक्स कौन पे करेगा? रिसिपिएंट और सप्लायर. व्हाट इफ सप्लायर इज हैविंग अ टर्नओवर लेस देन 20 lakhs and is an unregistered person?
आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो वापस बोल रहा हूँ, मैं कंपोजिशन स्कीम डीलर हूँ। मैं अपने आउटपुट पे जो टैक्स है वो भर दूंगा, 0.5 या 1 या 2.5 या वट एवर, वो तो मैं भर दूंगा, उसका तो कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने कुछ प्रोक्योरमेंट किया हो, अगर उस पर सप्लायर टैक्स स्टार्ट करे तो मुझे उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर सप्लायर की जगह पे आरसीएम हो तो सप्लायर चार्ज नहीं करेगा, कौन चार्ज करेगा? मैं खुद पे करूंगा, बट पे करने के बाद भी मेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। अच्छा, कौन सा रेट पे करूंगा? कंपोजिशन रेट और एक्चुअल रेट। एक्चुअल, सबको क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं उस सिचुएशन में उन गुड्स के बारे में, उन सर्विसेज के बारे में जिसमें कंपोजिशन स्कीम, आई मीन जिसमें रिवर्स चार्ज नहीं है, क्योंकि रिवर्स चार्ज तो कुछ ही गुड्स और सर्विस पे। तो मैं उन गुड्स में डील करूं तो ये क्वेश्चन आएगा, उन गुड्स में डील ना करूं तो कौन टैक्स पे करेगा? सप्लायर। तो सप्लायर टैक्स पे करेगा, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट व्हाट इफ सप्लायर का टर्नओवर 20 लाख से नीचे? अगर सप्लायर का टर्नओवर 20 लाख से नीचे है तो वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसने तो कोई टैक्स ही चार्ज नहीं किया। आपको समझ में आ रहा है? तो दैट इज वेयर अगेन रिवर्स चार्जेस आर। So now we consider reverse charge in two categories. One is reverse charge in relation to specified goods and services. Second, we consider reverse charge mechanism in relation to other than specified goods and services, but goods are procured from unregistered person. आपको क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, नहीं सर, आप एंड यूजर को बेचो, क्वालिफाई कैसे हो गया? मुझे तो उतना समझ में आता है कि हर गुड्स और सर्विस पे टैक्स होना चाहिए, उसने नहीं भरा तो मुझे पता है। क्रेडिट कहाँ सर? कंपोजिशन डीलर को काहे का क्रेडिट? वो तो मेरा डिसीजन है कि मैं कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा हूँ। अगर ना करता तो थोड़ी ये प्रॉब्लम होता। ना करता तो मुझे वैसे तो आरसीएम में भरना ही नहीं है, बट अगर भरूं तो भी क्रेडिट मिलने वाला है। ये तो मेरा डिसीजन है कि मैं आरसीएम फॉलो कर रहा हूँ ना, अरे सॉरी, कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा हूँ, तो वो तो मेरी कॉस्ट बनेगी। सर आप समझो, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम फॉलो ना करता तो ये रिवर्स चार्ज में जो भरा होता उसका क्रेडिट मिलता कि नहीं मिलता? So it is my point that on procurement, if tax is paid, I'll get a credit, but I'm choosing the composition scheme, and that's why I am choosing not to take it. बाकी गवर्नमेंट तो अलाउ करता है आपको क्रेडिट, क्लियर है ना? सीधा गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि हर प्रोक्योरमेंट और सर्विस पे टैक्स होना चाहिए, हर एक गुड्स और सर्विस पे टैक्स होना चाहिए। So they have very clearly identified certain goods and services on which RCM is applicable. But on other goods where it is not applicable, but if are procured from unregistered dealer, then you have to pay tax. And after paying tax also, you are eligible for credit. But because you choose to go for a composition scheme, so you will not get a credit. I hope everybody is clear. ये एक प्रोविजन है, और सर इसमें इनवॉइस भी आपको इश्यू करना है, वो आगे हम इनवॉइस में पढ़ेंगे। बिकॉज क्रेडिट लोगे तो आप जितनी चीजों का, जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो, रिटर्न में आपने हर एक चीज जिसका क्रेडिट लिया है वो अपलोड करना है, इनवॉइस नंबर। तो इसका क्या इनवॉइस नंबर? अनरजिस्टर्ड पर्सन ने तो सीधा नॉर्मल बिल दे दिया, उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप क्रेडिट के लिए क्या करोगे? तो अभी आप इनवॉइस इशू करो, वो क्या करेगा? हमको करना है। सो वी विल कवर अप दैट पॉइंट। यस प्लीज। नहीं सर, इसके बाद इमीडिएट बात कंपोजिशन स्कीम ही है। We will cover up, but सर्विस प्रोवाइडर में एक रेस्टोरेंट वालों के लिए स्पेसिफिकली अभी लाया, बाकी तो किसी के लिए नहीं था। इसमें बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला है कि मैन्युफैक्चरर एंड अदर, बट फिर नेगेटिव लिस्ट दिया, उसमें बोल दिया यू आर नॉट इन सर्विस। यस प्लीज सर।
सर वो तब जब वो कंपोजिशन स्कीम फॉलो करे सर, सबके लिए थोड़ी है वो सर, क्योंकि लॉजिक है सर, लॉजिक समझिए सर। आरसीएम में ऐसे गुड्स और सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ जो आरसीएम में है, मैं अदर गुड्स और सर्विस की बात कर रहा हूँ, बराबर सर। अगर ऐसे गुड्स और सर्विस है जिसमें आरसीएम है तो फिर भरना ही है, कोई भी हो। मैं ऐसे गुड्स की बात कर रहा हूँ जो आरसीएम में नहीं है। अब हमने हम सीए सर्विस की बात करें, हमारा 20 लाख से कम है, हम किसी का ऑडिट कर रहे हैं, हम जिसका ऑडिट कर रहे हैं क्या वो कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा है, तो यस उसको मतलब वो ही सर, क्योंकि लॉजिक है सर। अगर ना हो, फॉर एग्जांपल कंपोजिशन स्कीम में वो ना हो, तो उसको टैक्स भरवाए तो भी तो गवर्नमेंट उसको उतना क्रेडिट देने ही वाला है, तो फिर क्यों भरे? वो तो अपने आउटपुट पे टैक्स भरेगा तो वैसे भी आ ही जाएगा ना। आप ऐसे किसी बंदे को सर्विस दे रहे हो जो नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे कर रहा है, तो उसको तो वैसे भी अपनी लायबिलिटी पे टैक्स भरना ही है ना। तो आप रिवर्स चार्ज में टैक्स भरवाओगे तो उसको क्रेडिट मिलेगा, वो अपनी लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ करेगा, मैंने अभी टैक्स भरा तो उसी का वो खुद ही क्रेडिट ले देगा। कंपोजिशन वाले को तो क्यों ये बोला गया, तो क्या उसको तो क्रेडिट मिलने नहीं वाला है, तो क्या उसको अभी भरवाओ। So it is only restricted to those people who are under composition scheme, not for all. सबके लिए नहीं है। I hope everybody is clear with the book. Yes? Okay. E-commerce operator, which I very clearly said, specify the category of services supplied to e-commerce operator on which the tax shall be paid by only operator. Charging section ही ऐसा बना दिया है कि operator ही tax भरेगा। So ये dispute ही नहीं आएगा। ये डिस्प्यूट आपको क्लियर है ना क्यों आएगा? वो सीधा है कि अहमदाबाद में से कोई सर्विस दे रहा है, कोई बड़ौदा में कंज्यूम कर रहा है, कोई मुंबई में बैठा है जो उसको यूज कर रहा है, और वो देने वाला तो दिल्ली वाला है। तो क्या ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए ई कॉमर्स में तो क्लियर क्राइटेरिया। तो वी विल टेक अप दैट फॉर द सेशन। यस, ओनली सर्विसेज ई कॉमर्स, गुड्स के लिए नहीं, उसके लिए तो अलग क्राइटेरिया। I'm saying e-commerce only in case of service, not for goods. Goods में तो place of supply कोई issue ही नहीं, वो तो जहाँ से जा रहे हैं ना वही straight criteria। ये mean इसका reason क्या है? place of supply ये करने का। And goods में तो place of supply बहुत easily defined। Like अगर मैं अहमदाबाद से महाराष्ट्र goods बेच रहा हूँ ना, तो बहुत क्लियरली है कि जब गुड्स डिलीवर होंगे, सप्लाई टर्मिनेट होगा, जहां डिलीवर हुए वही प्लेस ऑफ सप्लाई। इस सर्विस का नेचर, so this Amazon and all that is not supposed to worry, make my trip, वो उसमें आता है। एवरीवन यहाँ तक सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। We will take a small 10 minutes 15 minutes break, टी ब्रेक। यहाँ पे बाजू में ही है, इधर से ही हम लोग सीधा जा सकते हैं। We will again come back after 10-15 minutes. Then we will have a lunch break around 1-1:30. Thank you. Yes. Up that point that for manufacturer the threshold limit is, I mean earlier was 1.5 crore. For trader the threshold limit earlier was 5 lakh. I mean different state different, but for Gujarat it was 5 lakh. The threshold limit for service provider was pan India 10 lakh rupees. But under GST, everything would be come under one roof, and that is 20 lakh. But a separate limit has been kept for, I mean, those states which are covered by Article 279A. So basically, we are talking about northeastern states. We are talking about Jammu and Kashmir, also Himachal Pradesh and all. So there are 7-8 states for which we have kept 10 states rather. Article 279A talks about 10 states for which we have kept a separate limit, which is 10 lakh. So a basic criteria threshold limit would be 20 lakh and 10 lakh, which we need to understand. Okay. Further, we need to understand is about composition scheme, which is one of the first topic that we will take up. I mean, अभी तक हमने सब basic ही cover किया. The first topic that we will take up is composition scheme. Now, when I say composition scheme, so I believe everybody is aware that there was no composition scheme in excise. There was no composition scheme in service tax. There was a composition scheme only in VAT. VAT में जो composition scheme है, उसी को यहाँ पे GST में implement किया है. तो more or less जितने भी provision थे वो सारे VAT के हैं. Under composition scheme,
they have kept the limit as 20 lakh to 50 lakhs. I mean 50 lakhs का limit define हुआ है. A taxable person, very clearly identified as a taxable person. So a taxable person is the one who is above 20 lakh. Or in some other cases RCM or certain things. But RCM में तो composition scheme आने वाला है नहीं. E-commerce वालों को भी allow नहीं करेंगे. We will consider, we will refer who is taxable person. But more or less ये किसके लिए है? A normal person who is under the limit above 20. I mean limit above 20. So a taxable person whose aggregate turnover in a preceding financial year is not exceeding 50 lakh. A very clear criteria. So 20 लाख के नीचे तो टैक्स है ही नहीं, तो उसमें तो कंपोजिशन होने का सवाल नहीं. 20 लाख से ऊपर टैक्स है, बट लिमिट रखा है 50 लाख. अगर 50 लाख के अंदर है तो आप फॉलो कर सकते हो. अगर 50 लाख के ऊपर गया तो आपको कोई स्कीम का एडवांटेज नहीं मिलेगा. एक हायर कैप रखा है. अगर किसी ने लॉ रीड किया हो ना, तो उसके अंदर लिमिट रखा है कि गवर्नमेंट हैज अ पावर टू इंक्रीज दिस 50 lakhs to 1 crore. So in future, government may increase this composition scheme limit to 1 crore if required. The power is there in the provision in law itself. Enact ही हो गया है, एक्ट के अंदर ही दे दिया है पावर कि गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टू 1 crore कंपोजिशन स्कीम लिमिट, जो एज ऑफ नाउ खाली 50 lakhs का लिमिट है. ठीक है, ये जो कंपोजिशन स्कीम का लिमिट है, अगर आप उस स्कीम में हो तो आपको टैक्स भरने के लिए अलग क्राइटेरिया फॉलो करना है. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ फिक्स्ड रेट, अ लंप सम रेट, इज व्हाट इज नोन इन वैट सिस्टम. ये रेट का क्राइटेरिया क्या है? सो कि मैन्युफैक्चरर के लिए अलग क्राइटेरिया है और अदर के लिए अलग था. अप टू नवंबर लॉ दो ही लोग थे, या तो मैन्युफैक्चरर या तो अदर. मैन्युफैक्चरर के लिए परसेंटेज था नॉट लेस देन 2.5% और अदर के लिए नॉट लेस देन 1% था. मैं बात कर रहा हूं नवंबर वाले लॉ. जो मैन्युफैक्चरर के लिए नॉट लेस देन 2.5% एंड अदर के लिए इट वाज नॉट लेस देन 1%. ये अभी जो चेंज हुआ उसमें तीसरी कैटेगरी ऐड की, कंसीडरिंग द जेन्युइन डिमांड रेज बाय द रेस्टोरेंट. क्योंकि रेस्टोरेंट वाले सर्विस टैक्स और वैट दोनों में आते थे. वैट में लमसम स्कीम था उनके लिए, सर्विस टैक्स में ऐसा कोई स्कीम ही नहीं है. तो व्हाट अबाउट द रेस्टोरेंट पीपल अंडर जीएसटी? क्योंकि ओरिजिनली जो जीएसटी लॉ ड्राफ्ट हुआ था उसके अंदर तो बहुत क्लियर वर्ड में बोल दिया था ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए है ही नहीं. कंपोजिशन स्कीम की मैं बात कर रहा हूं. सो इट वाज नॉट देयर फॉर सर्विस प्रोवाइडर, इट वाज देयर ओनली फॉर मैन्युफैक्चरर एंड अदर में से सर्विस प्रोवाइडर को ना बोल दिया था. बट रेस्टोरेंट वाले फूड एंड बेवरेजेस जो सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अलग से ड्राफ्टिंग किया और उनको इसमें ऐड किया. ऑब्वियसली देयर लॉबी हैज प्लेड अ मेजर रोल. उन्होंने डिमांड रेज किया था एंड एज इट वाज अ जेन्युइन डिमांड इट वाज गिवन इंपॉर्टेंस, इट वाज कंसीडर्ड. So now it has been kept for three different assesses. One is for manufacturer, another is for restaurant people, and other for other में mainly traders जिसकी हम बात कर रहे हैं. For manufacturer, initially the limit was not less than 2.5% of rate, but now it has been kept as 1%. For trader, initially the limit was 1%. जो other में limit था वो 1% था. Now it has been revised as not less than 0.5. So the rate has changed somewhat. It has been changed 0.5, 1, and for restaurant it has been kept as 2.5%. But I believe everybody is aware that ये बंदा कहीं से भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता. The person who is following this composition scheme has to pay a fixed tax of this turnover. You cannot charge that tax on your customer. आप आगे से टैक्स कलेक्ट कर नहीं सकते और आपके ऊपर जिसने चार्ज किया उसका आपको क्रेडिट, बेसिक कंडीशन. नाउ व्हेन आई से ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया. गवर्नमेंट में इंक्रीज द लिमिट, उनको पावर दिया गया है 50 लाख की लिमिट को वो 1 करोड़ तक ले जा सकते हैं. अबे द फर्स्ट थिंग, ये स्कीम जितना एडवांटेज वाला है ना उससे ज्यादा इसमें डिसएडवांटेज भी हो सकता है. ये स्कीम में क्यों हो सकता है उसका रीजन समझा. इधर बोला है कि आपको 1% पे करना है या 0.5 पे करना है या 2.5 पे करना है ऑफ टर्न. एंड हाउ डू यू डिफाइन टर्नओवर फॉर दैट पर्पस? उसके लिए ये 4 पॉइंट्स हैं. ऑल योर टैक्सेबल सप्लाईज विल बी काउंटेड, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज विल बी काउंटेड. बट टैक्सेबल सप्लाईज में आप जो आरसीएम में पे करते हो वो नहीं गिनते, बिकॉज वो भी एक टाइप का टैक्सेबल सप्लाई है आपके लिए. अगर आप आरसीएम में पे करो तो कोई भी रीजन से, वो गुड्स और सर्विसेज के कारण हो,
आई मीन स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज हो जिसमें आप आरसीएम पे करो, या वो अनरजिस्टर्ड वाला आरसीएम हो, कोई भी हो, वो आप मत काउंट करो. अदर देन दैट टैक्सेबल सप्लाईज हम काउंट करो. देन यू काउंट ऑल एग्जाम सप्लाईज, देन यू काउंट एक्सपोर्ट सप्लाईज, देन यू काउंट इंटरस्टेट सप्लाई. सो ये फोर पॉइंट्स है जो हमको काउंट करने हैं. अच्छा, ये सब की वैल्यू काउंट करनी है. बिना ही से ये सब की वैल्यू आपको काउंट करनी है. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर दिस इज, आप एक चीज ऑलवेज इग्नोर करो. क्या? तो क्या ये सब की वैल्यू काउंट करोगे, तो वैल्यू जब काउंट करोगे तो उसमें आपको क्या इग्नोर करना? taxes. All taxes has to be excluded. It should be a value के percentage. Now, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा पता? कि मेरे को एग्जाम सप्लाई के भी 1% पे करना है. एज अ मैन्युफैक्चरर मान लो कि मैं 2 गुड्स बनाता हूँ, एक एग्जाम्प्टी है जीएसटी और दूसरा टैक्सेबल. मेरा टोटल टर्नओवर 40 लाख होता है, कि नहीं से मैं एलिजिबल हूँ कंपोजिशन स्कीम के लिए? एलिजिबल होंगे ना भाई. 40 लाख है, कंपोजिशन स्कीम के लिए मैं एलिजिबल हूँ. अगर मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो गया तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरे को, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, कितना परसेंट पे करना है? अज्यूम करो अभी 1 ही है, नॉट लेस देन 1 है ना, तो हम 1 ही मान लेते हैं. तो 40 लाख का कितना परसेंट पे करूंगा? 1%. सो 40,000 का टैक्स बनना है. बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि 40 लाख में से 35 लाख एग्जाम्प्ट है, 5 लाख ही टैक्सेबल. तो अगर मैं नॉर्मल सिस्टम में जाता ना तो मुझे कितना पे करना पड़ता? 5 लाख के ऊपर पे करना पड़ता, क्योंकि एग्जाम पे तो मुझे पे करना. अरे आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. मैं 5 लाख पे करता, एंड मोर इंपॉर्टेंट वो 5 लाख पे करने के लिए मेरे को क्रेडिट भी मिलता. जबकि इधर क्या हो रहा है, एक तो कुछ क्रेडिट देते नहीं है और एग्जाम पे भी टैक्स भरवा रहे. सो ये ऑलवेज ध्यान में रखना कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको टर्नओवर का फिक्स परसेंट पे करना है. टर्नओवर इंक्लूड्स एवरीथिंग, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स. कोई मान लो कोई ऐसा बंदा है जो 40 लाख का टर्नओवर जनरेट करता है, 35 लाख लोकल मार्केट, 35 भी नहीं, मैं बोल रहा हूं 39 लाख लोकल मार्केट जो टैक्सेबल है. 1 लाख एग्जाम, आई मीन सॉरी, जो 39 लाख एग्जाम है, 1 लाख टैक्सेबल है, उसको भी पूरे 40 लाख पे 1% भरना पड़ेगा, जबकि उसको एक्चुअली 1 लाख के ऊपर ही टैक्स भरना था, जिसके सामने उसको क्रेडिट भी दिया. सो इट्स नॉट इन एक्चुअल पॉइंट कि आप हम सबको एडवाइस कर ही दे के कंपोजिशन फॉलो करो. प्रोफेशनल्स एडवाइस देने में ये बहुत ध्यान रखें कि भाई आप सबको ये अलाउ नहीं कर सकते. किसी को भी मत बोल देना कि कंपोजिशन फॉलो करो, बिकॉज ये फंस जाएंगे जो कंपोजिशन पे जाएंगे. हम लोग सोचेंगे कि टैक्सेबल का भरना है, एक्चुअली सबका भरना है, 1% और 0.5 और 2.5. सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दैट पॉइंट. Second thing is, when I say there are few not eligible categories mentioned for composition scheme, माने अगर आप इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे ना तो आप इसमें से बाहर निकल जाओगे कंपोजिशन स्कीम. कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, अगर आप वो कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं है. आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल कब होंगे? जब आप इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करें. क्राइटेरिया ही दे दिया है कि आप इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करो. द फर्स्ट वन विच इज मेंशन इज यू कैन नॉट प्रोवाइड अ सर्विस. सर आपका जो पॉइंट था कि सर्विस प्रोवाइडर, उनके लिए तो स्कीम ही नहीं है. हाँ, बट एक्सेप्ट द रेस्टोरेंट पोर्शन. सर कोई भी हो, नॉन एसी पे तो वैसे भी पहले कहाँ सर्विस टैक्स था, चलो जीएसटी में तो उनपे भी आने वाला है, बट उनके लिए सर्विस में हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट जिसको अलाउ करेंगे. वो भी स्पेसिफिकली ऐड किया गया ये बात, बाकी तो पहले तो ना ही था सबके. सेकेंड एज यू कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस. सो अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों में हो तो आप बाहर हो. सेकेंड इज सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल फॉर टैक्स. दैट मीन्स आप कोई ऐसे गुड्स में डील नहीं कर रहे हैं जो लायबल फॉर टैक्स.
थर्ड वन इज यू आर नॉट गोइंग फॉर इंटरस्टेट सप्लाई. अबे इंटरस्टेट सप्लाई में वैट में तो बहुत जोरदार था कि आप इंटरस्टेट प्रोक्योर भी नहीं कर सकते ना इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं कर सकते, वो वैट में था. इधर आपको बोला है इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते. आप इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई अलाउड है, खाली इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते इफ यू आर अंडर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम. अच्छा मैं बहुत क्लियर वर्ड में बोलूं, इस पे मेरे को ऑलरेडी किसी ने पूछ लिया है तो मैं बोल देता हूँ. मेरे को एक में ऐसा किसी ने पूछा कि सर आप बोल रहे हो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई अलाउ नहीं है, तो ऊपर टर्नओवर में इंटरस्टेट सप्लाई कहां से आया? नहीं परचेज वाला नहीं है, वो तो वैट में था कि परचेज और सप्लाई दोनों का काउंट करो, परचेज और सेल दोनों का टर्नओवर. नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, ऊपर है ना टर्नओवर डिफाइन किया है, टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम के लिए डिफाइन नहीं किया है. एक्चुअली मेरे को किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, आधे लोगों को शायद अभी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, मैं वापस बोल रहा हूँ. जो ऊपर वाला पॉइंट है ना उधर टर्नओवर लिखा है, टर्नओवर में बोला है इंक्लूड्स एवरीथिंग. इंक्लूड्स एवरीथिंग मींस इंटरस्टेट सप्लाई, और नीचे तो बोला है कि तुम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो तुम जीएसटी के लिए, आई मीन तुम कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं हो. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, वो टर्नओवर जनरल डेफिनेशन है, कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर का डेफिनेशन नहीं है. अगर आप कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर का डेफिनेशन ढूंढ रहे हो ना तो इंटरस्टेट निकाल दो, एक्सपोर्ट निकाल दो. भाई समझ में आएगा ऐसा? ओ हाँ सर, यस. दो पॉइंट है सर, एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा होता है एग्जम्प्ट सप्लाई. एक होता है सर्विस जो नेगेटिव लिस्ट में हो, दूसरा नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, सर्विस है टैक्सेबल है बट बाय एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एग्जम्पशन. जो मैं आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम से बता रहा हूं, एक ऐसी सर्विस है जो नेगेटिव लिस्ट में है, दूसरी ऐसी है जो लायबल है बट बाय नोटिफिकेशन एग्जम्पशन, उसको हम एग्जाम सप्लाई बोलते हैं. वही मैं बोल रहा हूँ, वो एक अलग पॉइंट हो. पहले हमको ये कॉल लेना पड़ेगा कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो नॉन टैक्सेबल वाला है कि एग्जम्प्ट वाला है. आई होप सर यू गॉट द पॉइंट. यस, सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस इशू. सो मूविंग अहेड विद दिस, आप दो आई मीन पहला मैंने बताया आप सर्विस में डील मत करो, दूसरा मैंने बताया आप गुड्स नॉट लायबल फॉर टैक्स है उसमें डील मत करो, तीसरा आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई मत करो, इनवर्ड सप्लाई चलेगा जिसपे आईजीएसटी पेड होगा बट कोई क्रेडिट अलाउ नहीं होगा. आरसीएम में भी क्रेडिट अलाउ नहीं होगा क्योंकि हम क्रेडिट लेते ही. नेक्स्ट, ई कॉमर्स से आप सप्लाई नहीं कर सकते, माने आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो, आप अपने कुछ ई कॉमर्स से नहीं बेच सकते. इज इट क्लियर? अगर आप अपने कुछ ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर, ठीक है. और कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है जिसके ऊपर अलाउ नहीं किया जाएगा, वो नेगेटिव लिस्ट दिया जाएगा, वो जो भी गुड्स होंगे उन पे अलाउ नहीं करेंगे. सो दैट इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट थिंग. वो तो क्या गुड्स होंगे वो तो वही बताएंगे, ठीक है. नाउ देयर आर चांसेस कि एक बंदा है जो एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाए, जिनको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पता है, दे आर अवेयर दैट अगर आप अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हो ना तो सबका रजिस्ट्रेशन अलग अलग. तो ये 50 लाख कैसे गिनने का, हर रजिस्ट्रेशन का अलग गिनने का, तो क्या नहीं टोटल गिनने का. मेरे एक स्टेट में टर्नओवर 20 है, दूसरे में 20 है, तो मेरे को 40 गिनने का, जो बिलो 50 है तो मैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल. आई मीन आई विल कंपेयर दैट विद एक्साइज. एक्साइज में अगर आपको पता हो तो 1.5 करोड़ का एग्जम्पशन है, तो फैक्ट्री वाइज थोड़ी 1.5 करोड़ होता है क्योंकि हम तो फैक्ट्री वाइज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. तो दैट मींस पहली फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा, दूसरी फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा, तीसरे का अलग होगा, चौथे का अलग होगा, तो हर एक का 1.5 करोड़ थोड़ी गिनना है. तो यहाँ पे हमारे दो अलग अलग स्टेट्स में यूनिट है तो दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग होता है. तो अगर दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग होता है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों अलग अलग यूनिट्स है, बट मुझे 50 लाख की लिमिट के लिए कंबाइन गिनना है, मैं ऐसे यूनिट वाइज नहीं गिन सकता 50 लाख. भाई यहाँ तक क्लियर है सबको? अब अगर मेरा एक यूनिट गुजरात में है, एक यूनिट महाराष्ट्र में, मैं गुजरात के यूनिट के लिए 20 लाख का टर्नओवर बोल रहा हूं, महाराष्ट्र के यूनिट के लिए भी 20 लाख का टर्नओवर बोल रहा हूं, टोटल 40 लाख हुआ. कैन आई ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम?
I have to opt for both the units. ऐसा नहीं गुजरात यूनिट के लिए कंपोजिशन फॉलो करूं, महाराष्ट्र के लिए. By default, either you opt or you don't opt. There is no third option. Straight criteria. या तो आप फॉलो करो या तो आप भूल जाओ. आप ऐसे रजिस्ट्रेशन वाइज अलग अलग नहीं कर सकते. आपको या तो सारे रजिस्ट्रेशन के लिए कंपोजिशन ऑप्ट करना है या तो आप किसी के लिए भी ऑप्ट करो. मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, which we will always keep that in. Moving ahead with that, procurement of goods or services by a taxable person. When I say procurement of goods or services by a taxable person, उसमें मैं जो RCM वाला बता रहा था ना, ये दोनों पॉइंट आ गए. पहला कौन सा है? Those goods and services which are already covered by RCM. तो उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो पहले ही आ जाएगा. उसमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा, खुद भरना पड़ेगा, RCM कैपेसिटी में भरना पड़ेगा और फिर भी क्रेडिट नहीं. और दूसरा, I am procuring those goods and services which are not covered by RCM, but I am procuring from a person who is unregistered. Then I am supposed to pay tax under. So second point. I believe everybody is clear with this issue, which we have already covered. Now, this is the scheme. आप एक्चुअल एक्ट पढ़ोगे ना, सेक्शन 10 है जिसके अंदर कंपोजिशन स्कीम है, इतना ही है.